Hello everyone, I'm Shivani Srivastava and I'm going to start a course on web development starting from basics HTML, then next CSS and then Bootstrap and then thereon. So just for introduction that I have a proper IT background. I have done certification in advanced computing through CDAC Bangalore, and you can see on the screen. And yeah, I have also experience in an IT company, Collins Aerospace, and some certifications here, and my past IT and industrial experiences in companies such as Gale, a an Indian government company, and also my first job at Acer Manufacturing, Delhi. So, and without wasting much time, let's start our course. Welcome to Web Development course. So, web development has two parts: the front end development and back end development. So, front end development, whatever is visible on the screen, on our phone screen or on the laptop, it shows the front end part, and where the data is stored, the back end part, we call it back end, we call it as back end development. So I'm making this course for English and Hindi viewers. So अम, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं कि फ्रंट एंड क्या होता है, कि हम अपना फ़ोन चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, we use WhatsApp, the whatever the screen, the structure, the color, green color, the icon, whatever is visible, that comes under front end development part. It is developed through front end technologies, and whatever our chats are, where it is stored, it is always retained whenever we reopen our chat. So where it is stored by using via backend technologies, but that comes under backend development. See, for our easy understanding, we always use this common websites like Amazon.in, Flipkart.in, and etc. etc. Now, so many websites are there in today's world, today's world, today's online world. So here, if here we see, whenever we open, for example, say Amazon website. So here, where's my cursor? Here. Here this amazon.in, यहाँ पे रहेगा, ये ऑरेंज कलर रहेगा, ये यहाँ पे कितने आइकन्स होंगे, ये स्ट्रक्चर पूरा, और ये किस कलर के होंगे, क्या फंक्शनिंग होगी, ये हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, इसको सीखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, backend development. Backend development includes management and storage of data. For example, same example, whenever we buy something on Amazon or Flipkart or anything, all our history is stored in order history. Where if we open after 2 months, after 3 months, all that data is stored. Where that data is stored, it is all managed by backend development thing. Okay, so for our basic understanding, we are just studying it. Later on we will see slowly how the technologies are used, how we code in that, and how we can make our own websites or apps. So let's get started with front-end development. First, we'll start with front-end development. Fill yourself with lots and lots of enthusiasm throughout the course. So if we are ready, yes, yes, say yes from inside, in your minds and in your hearts. Okay, here we go. So I'm sure you're ready with your laptop and lots of sincerity and enthusiasm. Yes, we need one laptop here to code. Okay, so next, front-end development includes HTML, CSS, JSS. HTML is hypertext markup language, CSS is cascade styling sheet, and JS is JavaScript. Now, in one by one, step by step, we will go in detail. For our basic understanding, I will tell. HTML gives the structure of the page, whatever is visible on the screen, what is where, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ये वाला मेनू यहाँ है, ये वाला पॉपअप इधर है, कौन सी चीज़ें बीच में रखनी है, वो हमारा HTML डिसाइड करता है. लेआउट हमारा HTML डिसाइड करता है.
कलर कौन सा होगा, जैसे इस स्क्रीन पे ही ये ब्लू कलर है, पर्पल कलर है, वाइट कलर है, तो उसमें कलरिंग है। और वो कौन डिसाइड करता है, CSS के थ्रू हम उसको डिज़ाइन करते हैं अपने पेज में। JS जावास्क्रिप्ट, अभी जैसे में हम ये स्क्रीन ऐसे कर रहे हैं ना, इट इज़ फंक्शनिंग, so the functioning part is included in JS part, okay, in our website. Well, this is my PPT, not in that concern. अगर हम वेबसाइट में मान लो वो क्लिक करते हैं ना होम पेज पे, तो होम पे चले जाते हैं, कोई उसमें ऐड आती है या यूट्यूब लिंक आती है, तो उस पर क्लिक करते हैं, तो उस लिंक यूट्यूब लिंक पे चले जाते हैं, तो दैट फंक्शनिंग इज डिसाइडेड बाय जावास्क्रिप्ट कोडिंग, ओके, understood? I guess for our basic understanding, this is um, the, this is it. Next, so yeah, अभी थोड़ा और डिटेल में, HTML, CSS, JavaScript. What is HTML? The full form of HTML is Hypertext Markup Language. It is used for structure layout of the page. जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम गूगल खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको I'll just show you how we can for example if you are opening Google, सी, तो द गूगल, ये गूगल का जो लोगो है ये बीच में है, ये सर्च बार है ये बीच में है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये सर्च पे क्लिक करें, हिंदी में देखना है, गुजराती में देखना है, एंड द स्ट्रक्चर, द ओवरऑल स्ट्रक्चर ये यहाँ पे होगा। तो ये कौन डिसाइड करता है, हमारा HTML डिसाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, CSS, कैस्केड स्टाइलिंग शीट, इज यूज्ड फॉर स्टाइलिंग ऑफ द वेब पेज। अभी देखिए क्या है कि ये हमारा गूगल जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई और वेबसाइट देख लेते हैं, इस समय एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट होता है यूट्यूब, ठीक है। या सो यूट्यूब कैस्केड स्टाइलिंग शीट, अभी यूट्यूब का कलर रेड होगा, और क्या कहते हैं, ये डिसाइड करता है हमारा CSS। कोई एक और वेबसाइट देख लेते हैं, चलो हम Amazon, हेलो एवरीवन, सो हम एक दूसरी वेबसाइट देख रहे थे, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे एनी वेबसाइट, लेट्स से फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट है ना। अभी देखिए फ्लिपकार्ट का लोगो यहाँ पर होगा, लेफ्ट टॉप में येलो कलर का होगा, और क्या कहते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट मिनट्स का मेन्यू होगा, यहाँ ट्रैवल का होएगा, यहाँ पर क्या कहते हैं यूज़र लॉगिन रहेगा, यहाँ पर हमारा मेन्यू होगा, और हमारा जो भी इस पेज की स्ट्रक्चरिंग है, बीच में कितने मतलब 1 2 3 4 5 इन्हें एक बार में फ्लिपकार्ट वालों को 5 रो में 5 प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, तो ये कौन डिसाइड करता है, इट इज़ डिसाइडेड बाय HTML। एंड व्हाट वी लर्न की कलरिंग फॉर एग्जांपल, कि हाँ ये कलर हमारा लाइट येलोइश ग्रीनिश होगा, ये कौन डिसाइड करता है, CSS। और फंक्शनिंग फॉर एग्जांपल, हम यहाँ जाते हैं ना मैंने फ्लिपकार्ट मिनट्स में, अभी देखिए क्लिक किया और ये पेज खुल गया, सो दिस फंक्शनिंग इज डिसाइडेड बाय, और इट इज फंक्शनड बाय आर यूजिंग JavaScript, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी आर अबाउट टू दैट विजुअल स्टूडियो, कैसे विजुअल स्टूडियो हम इंस्टॉल करेंगे, and start to code our HTML, then CSS and then JavaScript. Here we go. सर्च करेंगे Visual Studio Code डाउनलोड, ठीक है। और अभी जैसे मेरा विंडोज़ 11 है, आपका मैक हो सकता है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम डाउनलोड कर लेंगे। इट इज़ वेरी इजी, देखो सबसे पहला लिंक यहीं पर है, विजुअल स्टूडियो कोड आ गया, ठीक है, विल गो देयर नाउ, सी विजुअल स्टूडियो विंडोज़ 10 11 के लिए, उबुंटू के लिए है, रेड हैट फेडोरा के लिए, मैक के लिए है। तो जैसे कि मेरा विंडोज़ 11 है, ये 64 बिट वाला, इधर ही से इंस्टॉल कर लेंगे, आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। लॉन्च वगैरह करना इट इज़ वेरी इजी। आप हर चीज़ स्पून फीडिंग क्या है तो बहुत ईजी है, इतने ऐप्स इंस्टॉल करते हैं आप, इधर इधर क्लिक करेंगे, इट विल गेट इंस्टॉल्ड, क्या कहते हैं उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं बताती हूँ क्या करना है।
तो अभी आप जब आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत इजी है, चिंता की कोई बात नहीं है, आप करके देखो वो हो जाएगा, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया, हमारा ये होम पेज खुल गया। उसके बाद से क्या करना है, हमें एक्सटेंशंस पे जाना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है लाइव सर्वर, ठीक है। लाइव सर्वर जाएंगे, सर्च करेंगे और जो सबसे पहला है ना ये ऋत्विक डे वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हम इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, यू इंस्टॉल इट, ओके। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा बस टाइम लगेगा। देन नेक्स्ट विल गो क्रिएट अ फोल्डर, एक फोल्डर क्रिएट करती हूँ, ठीक है। हम्म, इधर ही करते हैं, न्यू फोल्डर, ठीक है। HTML एज वी आर लर्निंग, क्या लर्न करें हम, HTML लर्निंग, तो हम ऐसे ही एक नाम दे देते हैं, ठीक है। you go here and select, this folder is already selected, ठीक है। अब एक हम फाइल बनाएंगे यहाँ पर, index.html, ठीक है। हमें यही नाम देना है, डिफॉल्ट नेम index.html। और अब चलो सबसे अच्छी बात यहाँ पे मैं बताती हूँ कि हाउ टू स्टार्ट। एक हम एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ डालेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कुछ HTML कोड अपने आप आ गया, हमें कुछ नहीं करना था, बस एक्सक्लेमेशन मार्क पे क्लिक करा, फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दिया और ये आ गया। इसको हम कहते हैं हमारा बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। क्या होता है ये सब देखते हैं, विल सी वन बाय वन। इट इज़ वेरी इजी, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे 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 प्रैक्टिस से ये हमको क्या कहते हैं समझ में आ जाता है धीरे धीरे कि कौन सा टैग किस लिए यूज़ होता है। अभी यहाँ पे लिखा है डॉक टाइप HTML, ये क्या बताता है कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। एक है ये हमारा HTML कोड स्टार्ट होता है HTML टैग से और एंड होता है HTML टैग से। फिर HTML टैग के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं एक हेडर टैग यूज़ करते हैं जिसमें टाइप टाइटल वगैरह डाल सकते हैं अपने वेबसाइट की। जैसे अमेजन ही है तो हम लिख सकते हैं कि अमेजन वेबसाइट है, या हम अगर खुद की कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो हम वो टाइटल डाल सकते हैं। बॉडी है, ये पूरे वेबसाइट की जो डिज़ाइनिंग है हम वो बॉडी के अंदर करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। हम कहाँ पे थे, HTML टैग्स पे, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया index.html और HTML टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं एक बार फिर से बता देती हूँ, बहुत ईजी है। ये जो है ना HTML का स्टार्टिंग टैग है, ये HTML का एंडिंग टैग है। HTML के अंदर ही हम सारे टैग्स यूज़ करते हैं, हेड टैग, एंडिंग ऑफ हेड टैग, और ये अंदर कुछ है मेटा टैग्स है, ये मैं बताते हैं, हम धीरे धीरे आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी टैग का स्टार्टिंग है और ये एंडिंग टैग है। फिर टैग समझ में आ गया, index.html डिफॉल्ट फाइल होती है, समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर देखो गो लाइव पे जाना होता है, किधर है, सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है, हाँ ये देखिए ये गो लाइव है ना, इस पे जाएंगे, ठीक है। आ गया डॉक्यूमेंट, देखो हमारे जो ये वेब पेज है उसका टाइटल यहाँ पे दिख रहा है, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है टाइटल डॉक्यूमेंट, मतलब हमारे वेब पेज का टाइटल क्या होगा, डॉक्यूमेंट। अभी अभी कुछ है नहीं हमारे वेब पेज में, हम धीरे धीरे इसको इसमें कंटेंट भरेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, धीरे धीरे इसको सुंदर बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, ओके। माय वेबसाइट किधर है, दिस इज द वन, ये मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये ना index.html, मान लीजिए हम अगर अपना फाइल का नेम मान लीजिए यहाँ पे, रुकिए एक मैं बॉडी के अंदर एक टैग डालती हूँ, आप अभी धीरे धीरे बताते हैं कि ये क्या है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड वही कॉमन, जितने भी कोडर्स हैं सबको पता ही है कि हेलो वर्ल्ड तो हमको लिखना है, मैंडेटरी है समझने के लिए, ठीक है। एक ये मैंने कर दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी मैं इसका नाम बदलती हूँ, देखिए index.html मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया फाइल 1,
डॉट एच टी एम एल सेव कर दिया, ठीक है, सेव हो गया। फिर से क्या कहते हैं, इसको हटाया और फिर से हम गो लाइव जाते हैं। हम गए, ओके, वैसे इसमें तो दिखा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही फाइल है तो इसने उठा लिया है ऐसा फाइल वन डॉट एच टी एम एल। बट अगर राइट प्रैक्टिस तो है कि इंडेक्स ही लिखते हैं। अभी देखो एरर दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ फाइल वन डॉट एच टी एम एल है ना, कहते हैं कैन नॉट, हाँ क्योंकि हमने नाम बदल दिया है, ठीक है। चलो, था तो रहा ये, तो प्लीज चेक अगेन। इंडेक्स है ना, और इंडेक्स टू डाल दिया तो कैन नॉट गेट इंडेक्स टू एच टी एम एल। इसको मिल गया, एक बार फिर से रीनेम करके चेक करते हैं। क्या नाम, हाँ देखो, अभी वहाँ पे फाइल चेंज कर दी मैंने, इंडेक्स फाइल का नाम चेंज, इंडेक्स टू डॉट एच टी एम एल। मैं यही कन्वे करना चाहती थी कि ये बोलता है कि कैन नॉट गेट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये बोल रहा है। तो मतलब सबसे पहले जो है हमारा जो ब्राउज़र पे और बैकएंड जो होता है वो हम हमेशा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बाई डिफ़ॉल्ट वो सर्च करता है, तो उसको नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो मैं इसको दोबारा से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कर देती हूँ। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इतना समझ गए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देखिए अभी क्या है, HTML टैग समझते हैं। HTML टैग इज अ कंटेनर फॉर सम कंटेंट, और HTML टैग्स फॉर एग्जांपल दिस इज अ पैराग्राफ। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या चीज़। ये देखिए, ये जो चीज़ है ना, मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। दिस पार्ट स्टार्टिंग वन, ये स्टार्ट टैग है, ये पैराग्राफ टैग है। पी टैग इज पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का स्टार्टिंग पी और ये लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में, दिस द स्टार्टिंग टैग ऑफ पैराग्राफ टैग एंड दिस इज द एंडिंग टैग जिसमें एक फॉरवर्ड स्लैश रहता है। तो ये स्टार्ट टैग है और ये एंड टैग है। बीच में इसके हम पैराग्राफ लिखते हैं। हमारी वेबसाइट है और कई सारे कंटेंट डालने होते हैं तो पैराग्राफ टैग बहुत कॉमनली यूज होता है। और बीच में इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट कंटेंट भी बोल देते हैं। तो HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू एंड टैग। तो ये पूरा एक HTML एलिमेंट बोल देते हैं, यहाँ से लेकर p टैग से लेकर यहाँ से स्टार्टिंग से एंडिंग तक ये पूरा एक HTML एलिमेंट हो जाता है। जो भी हमने पैराग्राफ टैग यूज करा है ना, उसमें हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था, वही सेम, ठीक है, सिंपल है। अभी देखो लाइन बाय लाइन हम इसको समझेंगे, जो जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया है। Dog type HTML test browser, what version of HTML we are using? We are using HTML5, ठीक है। HTML root of an HTML document, HTML के स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में ही हम यूज कर HTML की कोडिंग करते हैं नेस्टेड तरीके से, ठीक है, इजी। कंटेनर ऑफ मेटा डेटा, हेड टाइटल पेज, ठीक है। कंटेनर ऑफ मेटा डेटा, अभी क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट इज मेटा डेटा। क्या होता है कि कई बार यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे कोड में डालनी होती है जो कि हमको अपने वेबसाइट पे या यूजर्स को नहीं दिखानी होती है, उसको हम मेटा डेटा कह देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पे है ना, मेटा डेटा कैर सेट, हमारा मतलब कैरेक्टर का साइज क्या होएगा, और क्या कहते हैं इंग्लिश में हमारा डेटा होएगा, या ये सारा मेटा डेटा होता है जो कोडर्स को अपने तक रखना है, वेबसाइट यूजर्स को नहीं उनको वो बताना चाहते, तो हम मेटा डेटा के थ्रू उसको यूज करते हैं, राइट। पेज टाइटल, पेज का टाइटल अगर हमको डालना है, जैसे फॉर एग्जांपल amazon.in, flipkart.in, हम खुद का वेबसाइट बना रहे हैं, अगर इफ़ यू आर एनीथिंग लाइक कोई भी हमको
प्रोजेक्ट बनाना चाहिए तभी हम उसको सीखेंगे। मान लो हम एक टीचिंग का ही वेबसाइट बना रहे हैं कि लर्निंग 360 डिग्री ऐसा करके, तो वी कैन पुट द टाइटल हियर, यहाँ पर पेज टाइटल पे हम लिख सकते हैं लर्निंग 360 डिग्री। ठीक है। नाउ बॉडी कंटेन्स ऑल डेटा रेंडर्ड बाय द ब्राउजर। बॉडी टैग के अंदर हम सारा डेटा लिखते हैं जो भी ब्राउजर पे हमको दिखता है और रेंडर किया जाता है वो सारा। ये H1 टैग है जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ टैग है जो हमने देख लिया। H1 टैग इज अ हेडिंग टैग, वो अभी हम डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट। नाउ these are some important points, we'll go through it quickly. HTML tag is a parent of head and body tag. Yes, सारा HTML का कोड हमको HTML tag के बीच में ही लिखना है। हम इसको तीसरी बार चौथी बार रिवाइज करें तो वो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है। Maximum HTML elements have opening and closing tags with content in between. Yes, जब भी जैसा पैराग्राफ टैग था वो भी स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग उसका भी था, एंडिंग उसका भी था। और फिर क्या था, हेड टैग है, हेडिंग्स के कई टैग्स हैं, और कैसे ऐसे तमाम कई टैग्स हैं जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ, कुछ टैग्स होते हैं जिसके स्टार्टिंग एंडिंग नहीं होता, वो सोलो होता है, वो अकेला होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक टैग, इमेज टैग, उसको हम कभी कभी एम्प्टी टैग्स भी कह देते हैं। ठीक है। तो उसका स्टार्टिंग एंडिंग नहीं होता। और लाइन ब्रेक करनी है, कई सारी लाइंस हो रही हैं हमारे वेबसाइट पे, तो हम उसको मान लो लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो ये ब्रेक टैग यूज कर लेते हैं। इमेज टैग, कोई इमेज डालनी है। ठीक है। वी कैन यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट व्यू पेज सोर्स टू एडिट एचटीएमएल। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक ये गूगल ही ले लेते हैं या एनीथिंग वी कैन टेक। आजकल ये कई ब्राउजर्स फेमस हैं। ये गूगल है, ब्रेव है, फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। ठीक है। मान लो हम ये ब्रेव ब्राउजर पे ही आ जाते हैं। ठीक है। मान लो हमें देखना है हाउ दिस पेज इज डेवलप, तो हम ऐसा राइट क्लिक करेंगे, हम व्यू पेज सोर्स भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है हमारी यहीं पे, जो हमने पढ़ा डॉक टाइप एचटीएमएल हेड। और ये हम अभी सिर्फ एचटीएमएल का ही पार्ट देखेंगे, नीचे जो ये स्क्रिप्टिंग पार्ट है उसको अभी हम नहीं देखेंगे। ठीक है। हेड बॉडी, तो ये देखिए कितना ये एचटीएमएल के ये कोड्स है और ये मेटा डेटा है, ये हेड है। हम व्यू पेज सोर्स के थ्रू देख सकते हैं कि कैसे डिज़ाइन हुआ है ये वाला पेज। ठीक है, ब्रेव ब्राउज़र का। नाउ इंस्पेक्ट पे गए अगर हम, सेम या इंस्पेक्ट पे भी आपको दिख जाएगा, ये हेडर है। ठीक है, हेडर का पार्ट है। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे अभी मैंने क्लिक किया, ये देखिए कैसे बॉक्सेस में डिवाइडेड है। ब्रेव ब्राउजर डाउनलोड एक बॉक्स में लिखा है, ये जो लायन का लोगो है ये एक बॉक्स में है। फिर नीचे जो ये ब्रेव ब्राउजर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, इट इज़ इन द सेकेंड रो। तो जो भी हमारा जो स्ट्रक्चरिंग की गई है वो HTML के थ्रू की गई है इस पेज की। समझ पा रहे हैं आप लोग? गुड टू गो? ओके। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू चेंज योर द नेम, कैसे कर सकते हैं? वहाँ पर है ना, डाउनलोड है, डाउनलोड लिखा है, ब्रेव ब्राउजर डाउनलोड लिखा है। मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ शिवानी, देखो यहाँ पे शिवानी आ गया, है ना। तो देखो कितना अच्छा है। अब हम समझ सकते हैं कि इस पेज की स्ट्रक्चरिंग एडिटिंग कैसे की गई है, कैसे व्यू पेज सोर्स से, और अभी हमने इंस्पेक्ट करा है। ठीक है। अभी आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है कि अरे मैम आपने तो ये अरे दी या मैम whatever you want to call, कि आप यहाँ पे शिवानी दिया तो किसी की भी वेबसाइट हम खराब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वेबसाइट डेवलपमेंट में एक फ्रंट एंड पार्ट होता है, एक बैक एंड पार्ट होता है। हम किसी की वेबसाइट को इस तरह से खराब नहीं कर सकते। हाँ, ये बस मेरे पेज में दिख रहा है। अभी मैं पेज रिफ्रेश करूँगी, इट विल क्या कहते हैं वो अपना ओरिजिनल आ जाएगा। आई कैन नॉट मॉडिफाई देयर वेबसाइट। तो ये समझ में आ गया। अनदर थिंग विच आई वॉन्ट टू शो यू इज हियर कि रिस्पॉन्सिवनेस, अगर हमको जो है आईफोन SE के लिए पेज, हम अगर हम यही पेज आईफोन SE पे खोलेंगे तो ये कैसे दिखेगा, ऐसा। ठीक है। नहीं नहीं, नॉट लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है। मान लो मेरा एंड्रॉयड है, किधर गया, एंड्रॉयड है या एनीथिंग, सैमसंग है,
सैमसंग पे कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो रिस्पॉन्सिवनेस भी हमको वेबसाइट डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट में इसका ख्याल रखना पड़ता है कि फ़ोन पे खोलें तो भी वो ठीक दिखे, वेबसाइट पे खोलें तो भी वो दिखते। तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो भी हम HTML के थ्रू ही उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। able to understandable now। ये हम समझ गए ना, इंस्पेक्टर व्यू पेज सोच के हम एडिट कर सकते हैं। नाउ हमें आपको बस एक चीज़ दिखा दूँ, जिनको अभी हम रिफ्रेश करेंगे जिनको ओरिजिनल आ गया। सो वी हम अपने कोड में जो हम अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। हम अभी ब्रेव या गूगल के वेबसाइट्स में ऐसे चेंज नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, हम कुछ कोड्स कॉपी कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि हाउ दे हैव मेड, बट फुल्ली तो बिल्कुल नहीं कर सकते। वी कैन लर्न एंड मेक अवर ओन, बट नॉट, वी कैन नॉट कॉपी फुल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, वन सेकेंड, या सो कमेंट्स इन HTML टू कमेंट्स अभी कोडिंग की दुनिया में है। क्या होता है कभी कभी कि कोडर्स को अपने ही कोड्स को समझने के लिए कभी कभी उसमें कमेंट डालना पड़ता है कि हाँ ये वाला कोड हमारा इस काम के लिए है, ये वाला कोड हमारा इस काम के लिए। तो कभी कभी कमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हम इस सिंटैक्स का यूज़ करते हैं, लेस देन, एक्सक्लेमेशन मार्क, और बीच में हम HTML कमेंट डालते हैं, फिर ग्रेटर दैन सिंबल, ठीक है। फिर एक और अच्छी बात कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है। अगर हम उसको स्मॉल कैप्स में ये टैग्स लिखें या बड़े बड़े कैप्स में लिखें तो दोनों सेम बात है, केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे कि जावा हो गया, खैर हाँ मतलब जावा एक कोडिंग लैंग्वेज है, बहुत ही पॉपुलर कोडिंग लैंग्वेज है, वो केस सेंसिटिव होता है, बट हमारा HTML केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड आई गेस। HTML एट्रीब्यूट्स, फिर क्या है, टैग है, हेडिंग टैग है। चलो हम यहाँ तक एट्रीब्यूट्स को देख ही लेते हैं क्या है। attributes attributes are used to add more information functionality to tag, for example HTML lang en the language attribute specifies the, ठीक है। अभी क्या है कि HTML टैग है ना, ये हम यूज़ किया विजुअल स्टूडियो कोड में। अभी हमको बताना है कि इधर लैंग्वेज EN यूज़ किया है, मतलब हमने इंग्लिश यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल मान लो स्पेनिश में ही हमको अपना पेज बनाना है तो हम ES यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंच बनाना है तो FR यूज़ करेंगे यहाँ पे इस सिंटैक्स में। तो एट्रीब्यूट्स है ऐसा, वो होते हैं जो मोर इन्फॉर्मेशन या फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं हमारे HTML टैग्स को, ठीक है। हम इसका यूज़ देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में रन करा के, यूज़ करके, एवरीथिंग वी विल सी, ओके। Heading tag used to display headings in HTML H1 H2 H3 H4 H5 H6। टॉप टू बॉटम हेडिंग की साइज घटती है, ठीक है। हम इसको अभी आपको कोड करके दिखाते हैं। पैराग्राफ टैग हमने देख ही लिया है। एक होता है एंकर टैग, ये बहुत ही यूजफुल टैग है। अब जैसे देखो, यूज टू ऐड लिंक्स टू योर पेज, मान लो हमने अपना पेज बनाया कि मतलब लर्निंग 360 डिग्री एक हमारा एक प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, जहाँ पे हम काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड .NET के थ्रू पढ़ा रहे हैं, या सीख रहे हैं और पढ़ा रहे हैं और बना भी रहे हैं उसमें। तो इस मतलब ठीक है। तो मान लो हमें उसमें एक गूगल का लिंक डालना है, मान लो हमें एक यूट्यूब के लेक्चर का लिंक डालना है, तो हम कैसे डाल सकते हैं उसको, यहाँ देखिए। एक ये एंकर टैग है और ये है href, ठीक है। ये एट्रीब्यूट वहाँ इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे हम अपने लेक्चर की लिंक डाल सकते हैं, यूट्यूब के लेक्चर की लिंक डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने देखो एग्जाम्पल में डाला है कि हमने ये गूगल की डाला है, इट वर्क्स, ठीक है। तो उस पर क्लिक करेंगे, इट विल गो टू द गूगल पेज। और अगर हमने अपने यूट्यूब के लेक्चर की लिंक डाली तो उस पर क्लिक करेंगे, हमारा लेक्चर खुल जाएगा। मान लो किसी भी मतलब स्टिचिंग सिखाया है, स्टिचिंग की सीरीज़ है, .NET की सीरीज़ है, वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ है, तो यहाँ पे हम लिंक डाल देंगे, इट विल कम, फाइन। इमेज टैग, ब्रेक टैग, बोल्ड इटैलिक टैग्स। अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे रुकूंगी। अब नई चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें आपको हेडिंग का और एंकर टैग्स का कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। लेट मी शो यू। चलो, सॉरी।
here, ठीक है। पैराग्राफ, हेलो वर्ल्ड, href p tag, इसको मैं p में ही डाल देती हूँ, ठीक है। पैराग्राफ टैग में डाल दी हूँ, मैं इसको यहाँ से हटाऊंगी, इसका एंडिंग टैग this option, this is fine I guess, anchor tag starting ending, ठीक है। ये एंकर, और मैं एक हेडिंग का भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देती हूँ। यहाँ पे एक br टैग का मैं आपको थोड़ा सा लाइन ब्रेक करेंगे, और देखिए h1, ठीक है। ऐसे ही करते करते हम h2, सॉरी वन सेकंड, h3, इसमें हम ये देख पाएंगे कि हमारा कैसे हेडिंग्स का जो साइज है वो बदलता है। कई कई सारे हेडिंग्स डालने होते हैं ना, एक सबसे ऊपर होता है, फिर बीच में, तो उस हिसाब से हम साइजेस यूज़ कर सकते हैं। HTML हमें 6 साइजेस में हेडिंग्स प्रोवाइड करता है H1 से लेकर H6 तक। उसको हम यहाँ पे देखते हैं। आप देखो H1 यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है। और इसको डिफर करने के लिए मैं यहाँ पे इसका नंबरिंग भी चेंज करती हूँ, ताकि आपको ये भी दिखेगा हमारे ब्राउज़र जब अभी रेंडर होगा ना, ठीक है। सेव इट ना, स्टॉप करा इसको, देन विल गो अगेन लाइव एंड सी हियर हेलो वर्ल्ड जो हमारा आ रहा था, ये देखिए ये गूगल का लिंक है, और हमारा ये H1 से लेकर H6 तक कैसे ये हमको बड़े से छोटा दिखा रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि हम कैसे अपने वेबसाइट को भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा भी ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, इसमें कलरिंग फंक्शनिंग हम CSS और JS के थ्रू डालेंगे, धीरे धीरे होगा। अभी HTML में ही बहुत कुछ सीख रहा है। सो एंकर टैग का यूज़ देखिए, हमने यहाँ पे गूगल की लिंक डाली थी, ये हियर वी गो, गूगल आ गया। कैसे किया हमने, इसी को हमने कॉपी करा, इसका यहाँ पे लिंक ये वाला, विल कॉपी दिस, कंट्रोल C, और यहाँ पे इस जगह पे पेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से अगर हमको यूट्यूब का लिंक डालना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पेज पे हमें यूट्यूब का, हमारा कोई यूट्यूब का लेक्चर है, हमारा खुद का ये मान लीजिए, वो डालना है। फिलहाल तो मैं कोई एक जनरल यूट्यूब का ही लेक्चर डाल देती हूँ, यूट्यूब, ठीक है। मान लो कौन सी लिंक डालें, मान लो सिंपल यूट्यूब की डालनी है, ठीक है। या कोई पर्टिकुलर वीडियो भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये कुछ भी स्पॉन्सर नहीं है, आई एम जनरली यूजिंग इट, जैसे करते हैं वन सेकेंड। For example, any animated, for example, there's a very cute movie, Bambi, ठीक है। Now, मुझे इसकी लिंक डालनी है। ये कोई लेक्चर भी हो सकता है, ये आपका खुद का भी कंटेंट हो सकता है यूट्यूब पे। वो आप अगर मान लो आपने अपलोड करा हो, तो आप कैसे को जोड़ सकते हो यहाँ पर, देखियो ये डाला, और ये Bambi मूवी ऑन यू, इसके बारे में थोड़ा सा हमने अपने से डिटेल डाल दिया, सेव कर दिया, and we'll stop it again and then we'll go live. See here, Bambi movie on YouTube, and if we click on it, yes, good to go. So I think you understood it. Yes. अगर आपको समझ आया और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ 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 stay connected. I'll come with
more details and enthusiastic learnings with fun, with joy. आगे के लिए, अभी के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपने लर्निंग के लिए कदम बढ़ाया. स्टे कनेक्टेड एंड अगर आपको ये अच्छा लगा प्लीज शेयर with the one who are needy, and thank you so much. Thank you. Bye, take care, smile everyone. Always.